Good morning, students. Welcome back to the class. Students, today we are going to have our 8th lecture on the chapter Atoms and Nuclei. Children, if you are regularly following the videos, you might be knowing that in the previous lecture we have started the topic nuclei. So we have discussed the composition of nuclei, the size and the density of the nucleus. And today, in continuation with that, today we are going to discuss the classification of the atoms on the basis of composition of nucleus. Okay, let's start. The first type of atoms which we have in this category is isotopes. So what are isotopes? These are the elements, these are the atoms of the same element. These are the atoms of the same element having same number of protons, means same Z atomic number, and different number of neutrons, means A minus Z. Mass number is different. So what are isotopes? These are the atoms of the same element having the same atomic number but different mass number. Same atomic number means they have the same number of protons. Different mass number means they have the different number of neutrons, because mass number is the sum of nucleons. It's a total number of nucleons. So if mass number is different, if the total number of nucleons is different, nucleons, the total number of nucleons means the number of protons and number of neutrons. Nucleons is equal to number of protons plus number of neutrons. If number of protons is same, obviously to make the mass number different, the number of neutrons have to be different. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है कि आइसोटोप्स एक एलिमेंट के वो डिफरेंट स्पीशीज हैं, वो डिफरेंट एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है. एटॉमिक नंबर सेम का मतलब है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और डिफरेंट मास नंबर का मतलब ये है कि यहाँ पर उनका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज डिफरेंट, और उसका इनडायरेक्ट मीनिंग आइसोटोप्स में ये है कि दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो एग्जांपल्स लिखेंगे हम. वी हैव 3 isotopes of hydrogen. They are protium, deuterium and tritium. Okay, these are the 3 isotopes of hydrogen. All these isotopes of hydrogen have the same atomic number 1 1 1. They have different mass numbers 1 2 3. It implies from here that it is having how many neutrons here? Number of neutrons is 0. Here the number of neutrons is 1. Here the number of neutron is 2. So if they have, for isotopes, they have same number of protons but they have different number of neutrons. Is it clear? The second example here we can quote, it is C612 and C614. These are the 2 isotopes of carbon. They have similar atomic number but different atomic mass. Okay, तो आइसोटोप्स की एक बात याद रखिएगा कि आइसोटोप्स हैव सिमिलर chemical properties. Why they have similar chemical properties? Because chemical properties are assigned because of the atomic number. तो chemical properties जो होती हैं वो atomic number की वजह से होती हैं. Since the isotopes have same atomic number, they have same chemical properties. Now we will do
bars. ठीक है. What are the isobars? These are the atoms of the same element having different atomic number but same mass number. इसमें मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है. तो इसका मतलब ये है कि इन द केस ऑफ आइसोबार्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोथ आर डिफरेंट इन द आइसोबार्स. हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल C6 14 and 7 nitrogen 14. They have similar atomic mass, mass number rather, and they have different atomic number. तो यहां पर देखो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. दूसरा आप लिख सकते हो लिथियम and you can write beryllium for beryllium 7. ये भी आ गया. सेम एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर. ठीक है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोबार्स. नाउ द थर्ड टाइप इज आइसोटोन्स. Isotones means these are the atoms of the same element having different atomic number as well as different atomic mass but same number of neutrons. Okay, the number of neutrons is same in this case. तो इसमें एटॉमिक नंबर भी अलग होता है, एटॉमिक मास भी अलग होता है, लेकिन क्या चीज सिमिलर होती है, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो फॉर एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं इसमें आया 1H3 and 2He4. देखो, these are the isotones. This is this is the isotope of hydrogen. This is helium nucleus. They have different atomic numbers, different atomic masses, but the number of neutrons is same. ठीक है. Then we have chlorine and potassium. ठीक है. These have different atomic mass, different atomic number, but same number of neutrons. So these are the examples of isotones. You have many more examples of isotones, isobars and isotopes, but in examination you will be asked to write only two examples. So you need to remember at least 2 to 3 examples of each. Okay. Now after, these are very important as far as the examination point is concerned, because these questions are asked there, these definitions are asked. Sometimes they give you these nuclides and ask you whether this is a set of isotopes. These are the isotopes, isobars are isotones. So for verification you have to count the number of protons, neutrons according to the definitions, और जिस भी definition में वो fit होगा वहां पर आप बता देंगे कि ये अगर उसके number of protons बराबर है तो वो आ गया आपका आइसोटोप्स. अगर उसके ना ही उसके एटॉमिक नंबर इक्वल है, ना ही एटॉमिक मास इक्वल है, ना ही एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है, तो वो आ गया आइसोबार्स. आइसोबार्स में अगर उसके एटॉमिक नंबर इक्वल नहीं है लेकिन एटॉमिक मास इक्वल है तो वो आ गया आइसोबार्स.
और आइसोटोन्स में आ गया कि ना तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, ना ही एटॉमिक मास सेम होता है, लेकिन एक चीज सेम होती है, वो होती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो याद रखिए क्या क्या होगा यहां पर आइसोटोप्स में, नंबर ऑफ क्या सेम होगा, प्रोटॉन्स इज सेम, ये इसका हाईलाइट है। इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज सेम, एंड यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम। तो एग्जाम में अगर कुछ भी आपको पूछा जाता है, आपने यही 3 चीजें काउंट करनी है, अकॉर्डिंगली आपने उसको नेम असाइन करना है। नाउ आफ्टर डूइंग दिस वी विल बी डिस्कसिंग द न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, मैं यहां पर आपको बताऊंगी व्हाट आर द न्यूक्लियर फोर्सेस। अब देखो, दिस इज a new kind of force which you are going to learn for the first time. No doubt आपने केमिस्ट्री में पहले किया होगा, लेकिन अभी तक जो आपने क्लास 12th में फिजिक्स में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन पढ़ी, क्लास 11th में आपने फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ी थी। फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता है that appears between two masses placed anywhere in the universe, और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अभी पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। उसमें आपने पढ़ा कि कहीं पर भी 2 चार्जेस प्लेस्ड हों तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उनके बीच में आती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द that depends upon the sign of the charges, if they are like or if they are unlike। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि देयर इज अ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल उसकी एक स्किन टाइप उसके मेम्ब्रेन होती है जो उसको एक लिक्विड मतलब डेंस लिक्विड की अपीयरेंस देती है। हम इसको एक बाउंड्री जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस हम निकाल चुके हैं, इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, सपोज प्रोटॉन्स हैं, और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, और वो छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स की तरह है। ये मैंने पॉजिटिव जिनके ऊपर लिख रही हूं, दे आर प्रोटॉन्स, और बाकी जो हैं जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वो हो गए आपके न्यूट्रॉन्स। ठीक, दीज आर योर प्रोटॉन्स एंड दीज आर योर न्यूट्रॉन्स। क्लियर हुआ? अब देखो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है और ये इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, इसकी डिस्कवरी क्यों हुई। अब आपको पता है कि जो भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनमें फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो अगर आपके पास 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, तो ऑब्वियसली उसके बीच में क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स आकर करेगी। और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या करती है, वो इन प्रोटॉन्स को पास नहीं आने देगी, जुड़ने नहीं देगी, वो इनको दूर दूर खींचेगी। तो अगर हमारे पास कोई हैवी न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस बढ़ता है, आपने पीछे देखा था, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मास नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे उसमें उसका साइज जो है वो बड़ा होता जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो अगर हमारे पास बड़े साइज का कोई न्यूक्लियस है तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट अ न्यूक्लियस जिसमें हमारे पास कुछ प्रोटॉन्स है। तो प्रोटॉन्स क्या करेंगे, आपको पता है प्रोटॉन्स इस प्रोटॉन की वजह से, इस प्रोटॉन की, इस प्रोटॉन, सभी प्रोटॉन्स की वजह से एक पर्टिकुलर प्रोटॉन अगर आप कंसीडर कर लो तो उसके ऊपर क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। उसी तरीके से दूसरा वाला प्रोटॉन भी बाकी वाले प्रोटॉन्स की वजह से रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और रिपल्सिव फोर्स आपको पता है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होती है, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस जो है वो जितना आप क्या करोगे,
जितना ये डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियस का साइज तो आपको पता है बहुत छोटा है, हमने अभी पिछले वाले टॉपिक में किया था कि न्यूक्लियस का साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 फर्मी के मीटर के बराबर होता है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का साइज तो बहुत छोटा है। न्यूक्लियस का साइज छोटा है तो ऑब्वियसली जो उसमें अंदर प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं वो भी बड़े कम डिस्टेंस पे प्लेस्ड होंगे। तो जब डिस्टेंस दो प्रोटॉन्स के बीच में कम है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा है तो ये न्यूक्लियस तो ये तो कभी चीज स्टेबल हो ही नहीं सकती। न्यूक्लियॉन्स तो कभी पास पास, प्रोटॉन्स तो कभी हम पास पास रख ही नहीं सकते। बट स्टिल वी हैव अ स्टेबल न्यूक्लियस। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स से हमने देखा कि हमारे पास तो न्यूक्लियस एक स्टेबल एंटिटी है। एंड मोर ओवर छोटे न्यूक्लियस की क्या बात करें, कुछ बड़े न्यूक्लियस भी हमारे पास ऐसे हैं जो स्टेबल है। अब अगर हम ये सोचें कि भाई कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो इस फोर्स ऑफ रिपल्शन को न्यूक्लियस के अंदर बैलेंस कर रही है। अगर हमने अभी तक जो फोर्सेस पढ़ी हैं, अगर हमारा ध्यान जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर, क्योंकि अगर रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कौन कर सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स, तो हमारी सोच जाती है कि क्या वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं जो कि प्रोटॉन्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही है और वो इतनी ज्यादा है कि वो इस फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम कर रही है। जब कैलकुलेशंस की गई तो देखा गया कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो तो बड़ी वीक है, वो तो इस फोर्स ऑफ रिपल्शन से 10⁻36 टाइम्स छोटी है। फिर साइंटिस्ट को इस बात पर सोचने के लिए वो मजबूर हुए कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है और वो फोर्स इसको बैलेंस नहीं कर पा रही रिपल्सिव फोर्स को बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स, तो फिर कोई ना कोई ऐसी फोर्स इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में एग्जिस्ट जरूर करती है जो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव है और जो इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करती है और जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस होने के कारण बावजूद भी वो स्टेबल बैठे हुए हैं। तो ये फोर्स जो अट्रैक्टिव है, ठीक है, और जो बैलेंस करती है विद इन द न्यूक्लियर रेंज फोर्सेस ऑफ रिपल्शन को, उसका नाम दिया गया न्यूक्लियर फोर्सेस। द न्यूक्लियर फोर्सेस वर डिस्कवर्ड बाय युकावा। किसने डिस्कवर किया था? युकावा ने डिस्कवर किया और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्सेस होती हैं बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स और वो फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव, हमेशा तो नहीं, वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कब तक वो अट्रैक्टिव होती हैं और कब वो रिपल्सिव हो जाती हैं। ज्यादातर ये फोर्सेस क्या होती हैं? दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर और इन दोनों के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स आएगी इट विल बी मच ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसका आपको यहां पर रेंज भी दे रखी हुई है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, ठीक है, is 100 times the Coulomb's electrostatic repulsive force and 10⁻38 times the gravitational attractive force। मीन्स अगर आपके पास दो प्रोटॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर हैं, अगर आप उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स निकालोगे तो आप देखोगे कि न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स मोर देन द रिपल्सिव फोर्स एंड 10⁻38 टाइम्स मोर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू प्रोटॉन्स। देन कम्स ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अनलाइक ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज का मतलब हुआ कि इसका जो इफेक्ट है, इसकी जो इसका इफेक्टिव पार्ट है, मींस जहां पर ये इंटरैक्ट कर सकते हैं दो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के साथ, वो डिस्टेंस बहुत कम है। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, मींस इसकी डोमेन, न्यूक्लियर फोर्स की डोमेन बहुत छोटी है। अनलाइक ग्रेविटेशनल एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में आप कहते हो कि दो बॉडीज कहीं पर भी पड़ी हो इस यूनिवर्स में, तो आप रेंज देखिए कहाँ है, ये इन्फिनिटी तक रेंज है, तो उन दो पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी। बट न्यूक्लियर फोर्स में ऐसा नहीं होता। दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्स तभी एग्जिस्ट करती है जब वो न्यूक्लियर डायमेंशंस के
रिलेटिवली कंपैरेबल डिस्टेंस के बीच में होते हैं। आप थोड़ा सा भी वो डिस्टेंस आगे कर दोगे, उसके बियॉन्ड चले जाओगे, तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस वैनिश हो जाएंगी। दैट इज वाई दे आर नोन एज शॉर्ट रेंज forces. They are effective only up to a certain distance. ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है। उसका मतलब ये हुआ द सेम, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड द एक्सपेरिमेंट्स with the help of experiments that the same magnitude of force acts between neutron, same magnitude of force act between proton and neutron, and same magnitude of force acts between proton and proton. Irrespective of their charge, the nuclear force between the nucleons remains the same. यानी कि ये ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में बीइंग अनचार्ज उसमें कम है। नो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। Then nuclear forces are saturated forces. What do you mean by the saturated forces? Saturated forces का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये सपोज जैसे यहां पर आपके पास न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स है, तो न्यूक्लियॉन्स विल हैव ये न्यूट्रॉन है, दिस विल हैव अ फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स विद द नियरेस्ट नेबर। मतलब वो इन्हीं दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगी। जो दूर के होंगे न्यूक्लियॉन्स, उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। उनमें अगर करेगी भी तो बहुत स्मॉल होगी। तो अनलाइक ग्रेविटेशनल एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसमें अगर आपके पास एक प्रोटॉन है तो उस प्रोटॉन के ऊपर बाकी प्रोटॉन्स भी जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा सकते हैं। दूर वाले प्रोटॉन्स भी उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। बट न्यूक्लियर फोर्सेस आर सैचुरेटेड फोर्सेस। सैचुरेटेड फोर्सेस मींस कि एक न्यूक्लियॉन अपने नियरेस्ट नेबर के साथ ही इंटरैक्ट कर सकता है। जो दूर है न्यूक्लियॉन्स, उनके साथ वो इंटरैक्ट नहीं करता है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर फोर्स, यहां पर देखिए, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ वन न्यूक्लियॉन एट अ टाइम इज ओनली विद द नियरेस्ट नेबरिंग न्यूक्लियन एंड नॉट विद ऑल द नेबरिंग न्यूक्लियॉन। सबके साथ वो फोर्स उसमें नहीं होती है। Now the next point is nuclear forces are exchange forces. This is very important point because it explains the nature of the nuclear forces. Yukawa in 1936 told us that the neutron and proton, they are made up of the subatomic particles, and those particles are known as quark. Quarks basically they combine to form protons and neutrons. ठीक है। तो जब प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स बाइंड होते हैं, दे गेट बाउंड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स का जो सेकेंडरी इफेक्ट है, दैट इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस। तो युकावा ने 1936 में हमें ये एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो फंडामेंटल फोर्सेस नहीं है। दीज आर द स्पिल ओवर और यू कैन से द सेकेंडरी फोर्सेस दैट अराइज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस दैट बाइंड द क्वार्क्स inside the nucleons. Nucleons means protons and neutrons, because protons and neutrons भी further किससे बने हुए हैं? क्वार्क्स से। क्वार्क भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो क्वार्क्स के जुड़ने पर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बनते हैं। तो वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का सेकेंडरी इफेक्ट है, वही रीजन है कि देयर एग्जिस्ट द न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। बेसिकली जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, यानी जो न्यूक्लियॉन्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ द आइडेंटिकल कोर्स। इनका कोर जो है वो आइडेंटिकल है और इनके अराउंड, जैसे एटम होता है ना, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और उसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो न्यूक्लियॉन्स के अंदर एक कोर है और कोर के सराउंडिंग में मिजॉन क्लाउड है। ठीक है, ये अभी आपके लेवल का नहीं है, बट फिर भी मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मिजॉन क्लाउड है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो डिफर करते हैं वो सिर्फ इस मिजॉन क्लाउड में ही डिफर करते हैं। ठीक है, उनका मिजॉन क्लाउड जो है वो दोनों का स्लाइटली डिफरेंट है। अब वो मिजॉन जो है, इट कीप्स ऑन कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंजिंग बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो इन दोनों को आपस में जोड़े हुए है। जब भी प्रोटॉन
और प्रोटॉन जो है वो मेसॉन एब्जॉर्ब करेगा, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जो है वो आपस में क्या करते हैं, मेसॉन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। कभी एमिट होता है, कभी इस प्रोसेस में मेसॉन एब्जॉर्ब होता है। तो वो उसके कारण जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो आपस में बंधे हुए हैं। तो मेसॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके एक्सचेंज के कारण हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल तरीके से, बिकॉज अगर हम क्वांटम फिजिक्स में जाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एट दिस स्टेज। अगर आप में से कोई आगे जाके क्वांटम फिजिक्स ऑप्ट करेगा, पढ़ेगा, तो उनको ये चीजें बाद में और अच्छे से समझ आ जाएंगी, मगर अभी इस लेवल पर आपके समझने के लिए हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप दो न्यूक्लियॉन्स को कंसीडर कर लीजिए कि जैसे वो दो डॉग्स हैं, ठीक है, और एक मेसॉन को आप कंसीडर कर लीजिए कि एक बोन है। अब वो दो डॉग्स के पास एक बोन है, ठीक है, और वो दोनों ही उस बोन को पाना चाहते हैं, दोनों में से कोई भी उस बोन को छोड़ना नहीं चाहता है। तो उन दोनों के बीच में ये फाइट लगी हुई है, उन डॉग्स के बीच में, ओवर दैट बोन। तो कभी एक डॉग बोन लेता है तो दूसरा डॉग उससे स्नैच करता है, फिर पहले वाला लेता है। तो मींस देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ बोन। वो जो छीना झपटी है वो उस बोन की उन दो डॉग्स के बीच में लगी है, और वो बोन है जिसने उन दोनों डॉग्स को आपस में क्या किया है, बांध के रखा हुआ है, क्योंकि दोनों में से एक भी उसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो जब बोन एक के पास चली जाती है तो दूसरा छीन लेता है, फिर पहले वाला उससे छीनता है, तो दिस फाइट कीप्स ऑन गोइंग। तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम कि न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में पाई मेसॉन जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दैट वाज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया पूरा डिटेल में। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, दैट इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव नॉन सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि अनलाइक ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था कि द gravitational force and the electrostatic force, these are the central forces, means they act along the line joining them. But यहाँ पर nuclear forces जो हैं वो non central forces होती है, they do not act along the line joining the center of the two nucleons. Then it is spin dependent. Spin जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि there is a spin, जैसे spin quantum number भी होता है, तो it has been observed that the nuclear force between nucleons having parallel spins is greater than the force between nucleons having anti-parallel spins. तो मतलब जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो जिन पार्टिकल्स में, जिन न्यूक्लियॉन्स में पैरेलल स्पिन्स होगी, उन दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होगी एज बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स with the anti-parallel spin. So they are spin dependent. ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि they are spin, पहले हमने पढ़ा था कि they are charge independent, they do not depend upon the charge, and यहाँ पर हमने पढ़ा कि they are spin dependent, they depend upon the spin. Okay, now comes the this part, ये है कि हम ज्यादातर बोलते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, बट न्यूक्लियर फोर्सेस कैन ऑल्सो बी रिपल्सिव इन नेचर डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स। दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिसाइड करता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो अट्रैक्टिव होंगी या रिपल्सिव होंगी। ज्यादातर अट्रैक्टिव होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये ग्राफ बताऊंगी। यहाँ पर हमने ये ग्राफ ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये मैंने बनाया है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर आई हैव टेकन दिस डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, और ये डिस्टेंस आर हो गया आपका, और इसको मैंने लिया हुआ है फर्मी में। फर्मी मीन्स 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, और इस साइड मैंने ली हुई है
potential energy and potential energy is taken in mega electron volt. तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर ग्राफ प्लॉट हुआ, एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है, दिस इज द रफ एस्टिमेशन, ये बहुत आप बोलो कि एक्यूरेट ऐसा नहीं है, दिस इज द रफ जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए उसके बेसिस पे जो डाटा कलेक्ट हुआ उसके बेसिस पर ये जो ग्राफ है वो बनता है. एंड सपोज ये मेरा आ जाता है RO डिस्टेंस, ठीक है. अभी मैं बताऊंगी आपको ये RO क्या है, और ये आप देखेंगे दिस ग्राफ गोज लाइक दिस, ठीक है. ये कैसा ग्राफ है देखो, अब ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है मेरा, दिस इज RO एंड दिस इज इक्वल टू 0.8 फर्मी, ठीक है. जब दो न्यूक्लियॉन्स बहुत दूर पड़े हुए हैं, ठीक है, 4 फर्मी से आप बियॉन्ड कह लो, मींस मैंने आपको पहले भी बोला कि दीज आर द न्यूक्लियर फोर्सेस आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेस. जब ये जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियर डायमेंशन से ज्यादा होगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो बाहर तो सवाल ही नहीं उठता कि न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के बाहर तो है ही नहीं न्यूक्लियर फोर्स. तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियर डायमेंशन में न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो एंटर होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर की अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे आपका या दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, दो न्यूक्लियॉन्स मीन्स दो प्रोटॉन्स या दो न्यूट्रॉन्स या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन या दो न्यूट्रॉन्स, उनके बीच में डिस्टेंस जैसे जैसे कम होता जाता है, आप देखो विद द डिक्रीज इन डिस्टेंस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, ठीक है. ये एक ऐसा डिस्टेंस आता है RO जहां पे पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव. यहां पर भी नेगेटिव हो रही है, देखो ये डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज यहां पर 0 थी, मतलब बियॉन्ड दिस लार्जर डिस्टेंसेस पे ये 0 है, नेग्लिजिबल है. जैसे जैसे आप न्यूक्लियॉन्स को पास पास लाते जाते हो द पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, और RO डिस्टेंस पर आके इट बिकम्स मैक्सिमम नेगेटिव. मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कोई सिस्टम स्टेबल होता है तो उसकी कंडीशन होती है कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इट ट्राइज टू हैव द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. तो पहले क्या था, न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए आ रहे थे और डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा था, ठीक है. डिस्टेंस डिक्रीज होता होता कहाँ पहुंच गया, RO के पास पहुंच गया. जब RO डिस्टेंस उसने अटेन कर लिया, वहां पर आने के बाद अब उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो गई उस समय RO पॉइंट के ऊपर, यानी 0.8 फर्मी पर आकर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे कम हो जाती है. जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है उसका मतलब है कि वहां पर जो आपके पार्टिकल्स हैं वो दोनों क्या हो गए, स्टेबल होने का मतलब है इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अब वहां पर फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, यानी कि अब वो दो पार्टिकल्स वापस एक दूसरे के पास नहीं आ रहे हैं. न्यूक्लियर फोर्सेस अब वहां पर सीज कर जाती हैं उस पॉइंट पर, मतलब न्यूक्लियर फोर्स 0 हो जाती है. इस पॉइंट पर आकर न्यूक्लियर फोर्स 0 हो गई. अब आपके न्यूक्लियॉन्स है वो अपनी जगह पर बैठ गए, ठीक है. क्योंकि जब दूर थे तो विद इन न्यूक्लियर डायमेंशन जब वो आए तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आ गई. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो न्यूक्लियॉन्स पास आते गए. जब वो RO डिस्टेंस पर पहुंचे तो अब वो वहां पर आके उस डिस्टेंस पर, एक मिनिमम डिस्टेंस पर आके रुक गए, क्योंकि अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको और पास नहीं लाएगी. और अगर आप उनको पास लाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, अब अगर आप RO से डिस्टेंस देखो, आप RO से आप डिस्टेंस क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, मतलब आप किसी तरीके से उनको दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.8 फर्मी से डिक्रीज कर रहे हो. तो क्या होगा, द पोटेंशियल एनर्जी अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज करेगी एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, यानी कि आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा. आपका सिस्टम अनस्टेबल हो गया, इसका मतलब है यहां पर जो फोर्सेस अब एक्ट कर रही हैं वो कौन सी हैं, रिपल्सिव फोर्सेस.
बिकॉज इस डिस्टेंस पर आने के बाद जब वो पार्टिकल्स आपने पास लाने की कोशिश की तो क्या हुआ, न्यूक्लियर फोर्सेस जो थी वहां पर 0 थी, और यहां से न्यूक्लियर फोर्सेस इस पॉइंट के बाद न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो क्या होना शुरू हो गई, रिपल्सिव। लेकिन फर्दर अगर आप उनको पास लाने की कोशिश करोगे तो यू हैव टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और वो जो आप वर्क करोगे वो बॉडी में स्टोर होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू न्यूक्लियन सिस्टम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो बियॉन्ड दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब है कि बियॉन्ड दिस पॉइंट जो एनर्जी, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के बाद जो फोर्सेस हैं वो कैसी हैं, रिपल्सिव। ये आपने वर्क पावर एनर्जी में ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है क्लास 11th में, कि अगर आपके पास ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैं इसके बाद आपको मैथमेटिकली भी बताऊंगी। और इस रीजन में इसके यहां पर ये वाली जो फोर्सेस होंगी वो क्या है, अट्रैक्टिव। ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं और उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जब वो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो वर्क इज बीइंग डन बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वो अपने आप पास आ रहे हैं। तो वर्क कौन कर रहा है, जो फोर्स इन दोनों के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खुद वर्क कर रही है, ठीक है। तो इनकी यानी कि द वर्क इज बीइंग डन एट द कॉस्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो जब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग when two particles are coming closer, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है दो पार्टिकल्स को पास लाने में, इसका मतलब है कि इन दोनों में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वही हो रहा है इस वाले रीजन में। आप पार्टिकल्स को पास ला रहे हो और आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो ये वाला जो केस है जहां तक ये डिक्रीज करती है दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद आ गया ये पॉइंट। अब आप फर्दर इनको देखो, अब ये दो पार्टिकल्स मैंने ले लिए, इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि ये एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इनको जबरदस्ती पास ला रहे हो। जब आप पास ला रहे हो इसका मतलब है यू आर वर्किंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और जो वर्क आप करोगे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन वो इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो देखिए, बियॉन्ड दिस with the decrease in distance the potential energy is increasing। इसका मतलब है कि यहां पर जो फोर्स है वो उसका नेचर कैसा है, रिपल्सिव। तो यहां पर हो गया कि फोर्स इज रिपल्सिव। क्यों, बिकॉज ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो हम यहां पर, मैं इसका जो कंक्लूजन है वो लिखती हूं। ये आपका इंटर एटॉमिक वाला भी जो है वो भी कॉन्सेप्ट यही है। आप उसमें न्यूक्लियॉन्स की जगह दो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप लिखोगे एट RO इक्वल टू 0.8, एट RO इक्वल टू 0.8 फर्मी पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, minimum. So for यहां पर so for RO फोर्स जो होगी that will be equal to 0। ये आ गया आपका point 1। point 2 आया at R greater than RO potential energy decreases with decrease in distance। and third point है at R less than RO potential energy increases with decrease in distance, ठीक है। ये तो आ गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको इसका अगर मैथमेटिकली बताऊं तो वो भी बहुत आसान है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, यही सिमिलर ग्राफ जो है आपको मैं यहां पर, ठीक है, ये ग्राफ हम यहां पर ऐसे में ड्रॉ करती हूं। ये पॉइंट आ गया जहां पर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ये वो पॉइंट आ गया जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम।
अब मैं क्या करूंगी कि इस ग्राफ को हमारे दो पोर्शन हो गए, मीन्स एक ये इस पॉइंट से ऊपर और एक इस पॉइंट से, ये राइट की तरफ और ये लेफ्ट की तरफ। मैंने यहां पर स्लोप ड्रॉ की और यहां पर भी स्लोप ड्रॉ की, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो आपकी इस साइड है ये एनर्जी है, ये डिस्टेंस है। तो बताओ ये जो मेरी स्लोप आएगी इस साइड, ये थीटा विल बी ऑब्ट्यूज और ये आ गया मेरा थीटा इज एक्यूट। तो आपको पता है स्लोप किसके बराबर होती है? स्लोप इज टेंजेंट थीटा। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पर आपकी स्लोप क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि थीटा अगर ऑब्ट्यूज है थीटा तो टेंजेंट थीटा भी क्या होगा? नेगेटिव। तो यहां पर ये आ जाएगी स्लोप हमारी नेगेटिव। यहां पर मेरी स्लोप इज पॉजिटिव क्योंकि एक्यूट एंगल है। स्लोप जो होती है दैट इज टेंजेंट थीटा, वो पॉजिटिव आ जाएगी। अब मुझे बताओ फ्रॉम द फॉर्मूला स्लोप क्या होता है, मतलब टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फॉर्मूले से मेरा ये जो टेंजेंट थीटा है बेसिकली यहां पर स्लोप किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू डी यू बाय डी आर। और ये भी क्या है? डी यू बाय डी आर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं मैथमेटिकली? कि ये एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, टेंजेंट्स ड्रॉ किए, यहां पर ये थीटा लिया, ये थीटा लिया, इस पॉइंट पे थीटा आपको ऑब्ट्यूज है, इस पॉइंट पे थीटा एक्यूट है। तो स्लोप यहां पर जो है वो हमारी नेगेटिव है, यहां पर स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। अब बाय द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट थीटा बताओ इस पॉइंट पे जो हमारी स्लोप होगी, स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? डी यू बाई डी आर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उस पर हमने यू लिया और हॉरिजॉन्टल पे हमने आर लिया। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल। ये हमारा एनर्जी आ गया, तो यहां पर आपने ये लिखा फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर। तो बताओ मुझे यहां पर इस पॉइंट पर एट पॉइंट ए ले लो, ठीक है। एट पॉइंट ए आपका स्लोप डी यू बाय डी आर किसके बराबर आ रहा है? नेगेटिव के। तो इट मीन्स डी यू बाय डी आर इज नेगेटिव, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव, तो ये बन गया पॉजिटिव। तो इस पॉइंट पे यानी कि इस आर ओ से ऊपर हमारी जो स्लोप है वो फोर्स है वो पॉजिटिव आ रही है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव फोर्स है तो रिपल्सिव को रिप्रेजेंट करेगी। अब आ जाओ हमारा एट यहां पर पॉइंट बी। बताओ पॉइंट बी पर हमारी जो डी यू बाय डी आर है दैट इज पॉजिटिव, देयरफॉर हमारी फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? माइनस डी यू बाय डी आर। तो इट विल बी नेगेटिव, और जो नेगेटिव होती है ये प्लस पॉजिटिव आएगी और ये क्या आएगी हमारी? इसको मैं नेगेटिव डी यू बाय डी आर, ठीक है। तो ये आ गया प्लस डी यू बाय डी आर और यहाँ आ गया हमारा नेगेटिव, यानी ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब है ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पर अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है फोर्स की, इसका मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स है। क्लियर हुआ? ये मैथमेटिकल, ये थ्योरेटिकल, मतलब ये आपको सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है। मे भी आपको एग्जाम्स में ये ना पूछे, सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दिस ग्राफ एंड शो वेयर द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड वेयर द फोर्स इज रिपल्सिव। तो मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछते हैं और सीबीएसई एग्जाम्स में भी ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अब बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी वाली कर्व एक्सप्लेन करूंगी। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग वीडियोस देखिए, वीडियोस को पूरा फॉलो करिए उसके सीरियल नंबर के हिसाब से, क्योंकि हमने जो टॉपिक्स कवर किए होते हैं उनमें एक कॉन्टिन्यूटी होती है। अगर आप बीच में से कोई वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो वाकई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां बीच में से अगर आप कोई टॉपिक लेंगे उसका लिंक
उसके प्रीवियस टॉपिक के साथ होता है। तो अगर आपको सच में ये टॉपिक समझना है, ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर बहुत आसान है, आप थोड़ा सा पढ़ के इसमें 100% स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अगर आप जैसे मुझे पता है कि अभी आपको 70% सिलेबस ही प्रिपेयर करना है, तो बच्चे कुछ सोच रहे होंगे कि हम लोग ये लास्ट वाले टॉपिक्स छोड़ सकते हैं, ये दैट इज अप टू यू। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप ये चैप्टर करिए, बट स्टिल अगर आप ये चैप्टर करते हैं ड्यूअल नेचर एंड एटॉमिक न्यूक्लियस, तो आपका 10 नंबर का पेपर जो है वो कवर हो जाता है। एंड मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसमें स्कोरिंग जो है वो आसान है। तो प्लीज अगर आप देखेंगे तो आपको फायदा ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।